Deshpande ji hai. He will explain the thing, what the theme is and all, how it come to mind. Okay. So basically, this is one of, I think, this kind of initiative should be there all over the city. One abandoned or rather less taken care of a traffic island, and again further through the ward officers, Mr. Vishwas Mote's concept of adopt a fallen tree and adopt the fallen tree pit and be a green guardian, and we kind of they rose to that occasion. And this particular traffic island, what you see, was it's one of the most popular spot with the Santa Cruz police station, beat chowki, and this spot. But people used to just miss it. Now what we have done is, in past like this one week's time, we have tried to restore its pride back. We have kept the design as simple. There was already one old mural which was there, which was overgrown with a lot of trees and plantation, which we have restored it back to its old pride. And we have just kept it a very simple kind of beautification point, which this, I think, and already is becoming a new selfie point for the city. So we are happy, and we thank Mote sir here and Ram sir. And all these things, I think, once you have a corporator, Mr. Manish Makwana ji like him, and who can support us for all these projects, I think soon we will adopt more such landscape areas and try to make the city bigger. Anupam sir, what was your reaction the moment Vishwas ji asked you to be on board, and that too is doing it for, for, I would say, a month, more than a month. We got Abhishek Bachchan, we got other celebrity, we got Hema Malini on board, she planted tree. Now you are the another one who's part of this initiative. What was your reaction? मैं क्या बोलूँ? First of all, I'm a very small person compared to this huge city, and when Mote sahab called me for this initiative, it was a great pleasure, it was a great honor. So I immediately said yes, of course, and it's something that I think everybody of all of us should imbibe in us to connect with Mother Nature. You understand that we have taken so much from Mother Nature, and it's time for us to give a little bit back. Like everything, I would say that everybody gets old, right? सब बूढ़े होते हैं, तो पेड़ भी बूढ़े होते हैं ना, वो भी कमज़ोर हो जाते हैं. तो जब ऐसा कोई साइक्लोन या तूफान आता है, तो वो कई बार नहीं झेल पाते हैं और उखड़ जाते हैं. तो उसकी जगह पर हमें चाहिए कि नए पौधे और नए एक जनरेशन के साथ, नए उत्सव के साथ हम इसको वो करें, ताकि अगले हमारे फ्यूचर्स, हमारे नेक्स्ट जनरेशन्स इसका फ़ायदा उठाएं. और यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो 100 साल 200 साल जिए. विश्वास सर, ये भी जानना चाहूँगा आपसे, यू स्टार्टेड विद प्लांटिंग ट्रीज. अब हम देख रहे हैं खूबसूरत बनाने का काम भी हो रहा है, जैसे ना द वे ही डिस्कस अबाउट हाउ यू पुटिंग ब्यूटिफाई दिस पर्टिकुलर स्पॉट, मेकिंग अ सेल्फी पॉइंट. ये एक अलग इनिशिएटिव जोड़ दिया है आपने. इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट. Yeah, first of all, really thank you for Integro and our local councillor Anish Makwana ji, local MLA Amit Satam sir, कि यहाँ के काउंसिलर और MLA होने के नाते उनके मन में ये काफ़ी आइडिया थी और कंसेप्ट उनका ऑलरेडी था, बट समहाउ ड्यू टू पैंडेमिक इट गॉट प्रोलॉन्ग. तो उसमें हमने जब ये साइक्लोन के बारे में बाद में जो अडॉप्ट अ फॉरेन ट्री पीट एंड बी अ गार्डियन ऑफ ग्रीन, ये जो कैंपेन चलाया, तो ये कैंपेन चलाते समय हमारे मन में ये भी आया कि क्यों ना इसका एस्थेटिक सेंस, अपने वार्ड का एस्थेटिक व्यू बदला जाए. और इसमें आप सभी को पता है पैंडेमिक की वजह से CSR तो नहीं मिलते हैं, बट CSR के लिए रामाश्रय यादव जी फ्रॉम इंटीग्रो एसेट मैनेजमेंट वो तुरंत रेडी हो गए. ब्रेन उनके पीछे जो एग्जीक्यूटिव है रमेश जैन सर है, DNJ ऋषभ वर्ल्ड परेल, अनिकेत देशपांडे जी है, पूरी टीम है. तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब अर्बन गवर्नेंस की बात आती है तो अर्बन गवर्नेंस में all stakeholders need to be considered and we need to promote many ideas. Being a local self government, हमको ये देखना है कि जितने से ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन, एक सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जब आता है, तो अपना एरिया काफ़ी अच्छी तरह से ब्यूटीफाई हो सकता है. ब्यूटीफाई करने के लिए हम है, पब्लिक मनी फंड भी है, बट उसके बावजूद भी जब तक लोकल रेसिडेंट्स जो है
उनमें सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आता है, केयर टेकिंग एंड नेचर नहीं आता है, तब तक ये सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। अनीश जी सर ने और साटम सर ने इसके पहले भी यहाँ पे था, हमने यहाँ पे नया कुछ नहीं किया है, जो पुराना था उसको खाली रीइंस्टेटमेंट किया है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस हमसे हो सकता है ड्यू टू पैंडेमिक, ड्यू टू एनी अदर इश्यूज थोड़ा पीछे रह गए थे। तो अभी CSR के मार्फत इंटीग्रो असेट मैनेजमेंट आए हैं सामने, तो हमको ऐसे बिजनेस हाउसेस को, ऐसे लाइक माइंडेड पीपल को कनेक्ट करके उसको इसी कैंपेन को आगे लेके जाना है। इस कैंपेन में हमारे साथ आज जुड़े हैं अनुपम सर ऑल्सो, एंड राइटली कनेक्टेड विद द अर्थ। ही वॉज वेरी हैप्पी टू से यस इमीडिएटली एट द 11th आवर। तो लोकल प्रशासन होने दो, लोकल पुलिस होने दो, सभी जनों का एक टीम है, जैसे आप भी है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड कि जो प्लांटेशन का कैंपेन चल रहा है उसमें आज ये अपना ऐड हो गया, तो इसका पूरा क्रेडिट अपने यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स, लोकल काउंसलर इन्हीं को जाता है। इनके माध्यम से हम आगे और बढ़ेंगे। आप देखेंगे अपोजिट जहाँ पे हमने प्लांटेशन किया है वहाँ पे भी सेम इन्हीं के संकल्पना से हुआ था, तो वहाँ पे भी हम अभी अपकीप करेंगे। मेरा मैसेज ये कहना है कि अडॉप्ट अ वॉलंटरी बी अ कैंपेन, बी अ गार्डियन ऑफ ग्रीन्स। ये लेने का मकसद यही था कि हम मिलजुल के अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं, लाइक माइंडेड पीपल को इकट्ठा करते हैं, तो इसकी डिलीवरी जो देनी है, क्योंकि आज अभी भी हम पैंडेमिक में है, वी आर ओवरलोडेड, बट स्टिल वी वांट दिस सिटी टू बी ब्यूटिफाइड in such a way that we should, being a local self government, being a local representative, we should promote these activities। जो मुंबई को कमर्शियल हब बनाते हैं, जो टैक्सेस आते हैं तो तभी आते हैं जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, फॉरेन लोग आएंगे। आप देखेंगे जुहू चौपाटी पे कम से कम दिन में 10,000 लोग विजिट करते हैं, तो वो 10,000 लोगों के अंदर में जो अपनापन आएगा कि यहाँ पे एक नया नेचर, यहाँ पे नया ब्यूटी बन रही है, तो दैट ब्रांडिंग फॉर द होल सिटी, आई विल से नॉट फॉर BMC, दैट ब्रांडिंग विल टेक मुंबई एज अ कमर्शियल कैपिटल। सो उसमें हम सब मिलके काम कर रहे हैं, आप सब यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सीनियर PI गनोरे सर, उनका हमेशा हमारे साथ कोऑर्डिनेशन ही रहता है। अभी उनके माध्यम से भी यहाँ पे एक चौकी बन रही है, वो भी काफ़ी ब्यूटीफाई होके आई थिंक अ न्यू लोकेशन विल बी हेयर, सेम प्लेस लेकिन अलग एक अपीयरेंस आपको कुछ ही दिनों के बाद वहाँ यहाँ पे दिखेगा, द होल एरिया, स्ट्रीट एंड ऑल दैट। सो वंस अगेन आई थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये कैंपेन ऐसे चलता रहेगा, आप हमेशा जुड़ते रहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अनीश मकवानी सर से कि वो और बात रमेश सर, देन राम सर। First of all, I would like to thank our ward officer and I think Mr. Ram Yadav and Mr. Jain of Integro। जैसे दांडी मार्च का आप वहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, वो एक रेवोल्यूशन था। मुझे लगता है कि वार्ड ऑफिसर के नेतृत्व में हम लोग एक नया के वेस्ट में ब्यूटिफिकेशन का रेवोल्यूशन करेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। और ये बहुत अच्छा स्पॉट है। आई थिंक गनोरे जी इज़ ऑल्सो देयर। मैं गनोरी जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप थोड़े आपके ऑफिसर जो है इसकी देखभाल करें, बिकॉज एंटी सोशल एलिमेंट जो है इतना अच्छा ब्यूटीफाई जो प्लेस किया है उसको हार्म नहीं कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब से चुन के आए हैं तो आई थिंक वी हैव इन्वॉल्व मोर एंड मोर सिटीजन्स in developing places and I really thank Ram Yadav ji, ward officer ji, and I think all the people who have contributed for this, because ये जो फंड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते थे वो CSR के माध्यम से वार्ड ऑफिसर साहब ने हमको थोड़ा सा गाइड किया और CSR फंड यूज़ किया, ताकि जो मैं मेरा नगर सेवक निधि है वो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए यूज़ कर सकूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वार्ड ऑफिसर का सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहा है। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम बिकॉज मुझे नहीं लगता कि पूरे मुंबई में ऐसा कहाँ पर मतलब इतना अच्छे से काम हो रहा है। और मैं वार्ड ऑफिसर को एक और बार कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। गनोरे साहब हमेशा जो हमें साथ देते हैं, राम यादव जी, जैन जी, मिस्टर भट्टाचार्य जी, एंड आई थिंक ऑल द डिग्निटरीज, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इनिशिएटिव। थैंक यू। थैंक यू।
अनुपम, I wanted to ask you, how important is the ownership? जब हम बोलते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, being a citizen of Mumbai or being an Indian, how important to take a ownership of anything, you know? सर देखिए, जो चीज़ खूबसूरत होती है, जैसे मुंबई है, सब यहाँ पर आना चाहते हैं, सब यहाँ से कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, है कि नहीं? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू बी रिस्पॉन्सिबल। जैसे हमारे इतने सारे वॉरियर्स हैं जो इस चीज़ को इतना इनिशिएटिव दे रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ अप टू द सिटीजन्स, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट ब्यूटीफुल। ठीक है ना? ये उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि इसके साथ जिससे इसको डैमेज ना करें, कभी इसको हार्म ना पहुंचाए, जैसे कि मकवाना साहब ने कहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई ये नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि शहर हमें सिर्फ दे, हमें भी शहर को कुछ देना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट आई फील इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिटीजन्स। मोटे साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, यू नो, दिस NGO ऑल्सो इन्वॉल्व, मेगा फाउंडेशन, हाउ इम्पोर्टेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ NGO? लोग तो आप साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन एक NGO के बारे में अगर आप कुछ बता सकें, वो कितना इम्पोर्टेंट? या डेफिनेटली मेरा यही कंसेप्ट है कि जिस वार्ड में मैं काम करने चाहता हूँ, तो मैं लोकल सिटीजन्स, लोकल NGO और लोकल रेसिडेंट्स को लेके ही जाने की कोशिश करता हूँ। अपने इस कैंपेन में मेक अर्थ ग्रीन अगेन मेगा फाउंडेशन के माध्यम से अनुषा मैडम, नंदिनी जी जुड़े हुए हैं, सिद्धांत है, वेदांत है, और वृक्ष नर्सरी के अपने शान लालवानी जी है, ये दोनों भी यहीं से है। तो दैट इज़ प्राउड फीलिंग कि अपने आप एक इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज जो बोलते हैं, या कम्युनिकेशन जो होता है, वो अपने आप वो कर रहे हैं। तो ऐसे काम में हमेशा वो हमारे साथ रहे हैं। वी रियली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट, एंड आई रिक्वेस्ट राम सर फ्रॉम इंटीग्रो राम सर टू से समथिंग। मुझे एक कहना, मैं एक पॉइंट कहना रह गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आर्ट वर्क लाइफ, BMC या पुलिस, जो भी गवर्नमेंट में मशीनरी है, वो नॉन स्टॉप 24/7 काम करते आते रहते हैं। पैंडेमिक में काफ़ी नागरिकों को समझ में आया कि रियली हम काम कर रहे हैं। तो वर्क लाइफ, ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस हमारा काफ़ी बार ड्यू टू हेक्टिक शेड्यूल एंड नॉन स्टॉप वर्किंग वो ढल जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये जो थीम है, जो राम सर का जो ऑफिस है वो परेल में है, आदेश्वर महल, एक बहुत पुरानी बिल्डिंग, यू कैन से खंडर जैसी बिल्डिंग को हेरिटेज पूरा री इन्वेंट किया है, उसको पूरा डिस्कवर, पूरा रीवैम्प किया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अनिश जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी आप वहाँ पे जाइए तो उनका जो थीम है दैट इज़ आर्ट वर्क लाइफ। आज तक हम वर्क लाइफ के बैलेंस करने की कोशिश करते थे, बट नाउ आई रियलाइज दैट टू बैलेंस द वर्क एंड लाइफ, art is very essential, and intentionally they have put it first, because which is वो अभी कहीं तो मिस हो रही है अपनी लाइफ में। रोज की भागन दौड़ी में आर्ट कहीं तो मिस हो रही है। आर्ट डजंट मीन दैट वहीं पे या कोई म्यूजिक या नथिंग, ये भी इसको मेंटेन करना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, ये भी आर्ट है। लोगों के साथ जुड़ना, डायलॉग करना, ये भी आर्ट है। तो अर्बन गवर्नेंस की जब मैं बात करता हूँ तो इसी में सब ये स्टेक होल्डर्स आते हैं। तो इसमें आर्ट वर्क एंड लाइफ उन्होंने किया है बैलेंस, इसलिए मैं पूरा उनका शुक्रगुजार हूँ। उनके पीछे, पर्दे के पीछे रमेश जैन सर, ही इज़ अ ब्रेन, उनके पीछे की जो है वो है निकेत देशपांडे, हु इज़ अ सिस्टम आर्किटेक्ट, ही हिमसेल्फ हैज़ पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट। तो अभी मैं और करता हूँ राम सर के लिए टू शेयर हिज आइडियाज़। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मोटे सर को और अनीश जी को, बिकॉज़ हम लोगों ने कुछ अलग नहीं किया हुआ है, जो था बस उसी को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। एंड हम होप करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ आज के लिए नहीं हो, बट यहाँ पे जितने लोग हैं जो यहाँ आते जाते हैं, जो हैं सर हैं यहाँ पे, उसको और अच्छे से मेंटेन करें और अच्छे से ब्यूटीफाई करें। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू participate in our own small way to start transforming places in a smallest possible manner so that the whole city gets transformed, and that's our objective. Thank you. इस यूनिवर्सिटी से जुड़े
सभी लोगों का मैं पहले तो स्वागत करता हूँ और मैं ये डिक्लेयर करता हूँ आज से मैं भी जुड़ गया आपके साथ। जो भी कुछ है सब देखभाल की जिम्मेदारी मुझे कॉर्पोरेटर साहब ने दी है, तो 100% पुलिस को निभाएंगी और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये सब जो एरिया है मुंबई है स्वच्छ और सुंदर कैसी हो, इसके बारे में पुलिस भी प्रयास करेगी। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू प्लीज 1 minute थोड़ा सा क्लियर आ गया। चलो सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सिविक अथॉरिटी, यहाँ के रेजिडेंट और यहाँ के पॉलिटिशियन, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे है और व्यापार जगत के दिग्गज वो भी साथ में है, आर्किटेक्ट साहब भी यहाँ पर साथ में है और यहाँ के कुछ अड़ोसी पड़ोसी जो इन जगह को किस तरीके से साथ संभाल करके रख रहे थे वो सब साथ में है। यहाँ पे अपने और पराये का कहीं पर कोई भेद नहीं है और यही एक सिंपल सा मैसेज है कि सब मिलके साथ में काम करके हमको एक राह पे चलना है, तेरा मेरा मिटा करके और सब चीज़ को ऊपर उठा करके लेके चलना है। मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई गनौरी साहब के साथ में, ये यहाँ पर जो पीट चौकी का मुहिम इतनी बढ़िया करी हुई है तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया these 2 things are not separate, this is one unit और इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक एक्सपीरियंस जो है हम लोग यहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे। और मोटे साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस वार्ड के अंदर एक इनिशिएटिव को जो लेकर के चले हैं, उन इनिशिएटिव के साथ में हम लोग उन चीज़ों को और आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। मेरी कॉर्पोरेटर साहब के साथ में मुलाकात हुई, इतने यंग इतने डायनामिक लोग बाग जिन्होंने कई साल पहले से ये सारा का सारा सबका समझाया था, लेकिन ये हो गया कि हो सकता है कि सब लोग आइसोलेशन में बैठे हुए थे, लेकिन हम अब सब मिलजुल करके एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। बस ये इस कारण से अब नया बदलाव इसमें आएगा और देखने में सबको आनंद आएगा। थैंक यू। थैंक यू। As a resident very near, he will also adopt. Please. तो ये मेरा रूट रहता है रनिंग का, और ये हमेशा दिखता था कि इतना ब्यूटीफुल स्पॉट है लेकिन कितना बेस्मान हालत में पड़ा हुआ है। और आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी एसोसिएटेड विद इट एंड एवरीबडी सेड दैट इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप इट ब्यूटीफाइड एंड इवन मोर देखभाल उसके करके हम उसको आगे बढ़ाएं। पूरी सिटी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू।